رات کے 10 بجے پروفیسر جمشید آیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی امید افزا معلومات حاصل کر کے نہیں لایا۔ میں اور گل خان اوپر والے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ گل خان نے اسے پوچھا کہ اس نے کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ پروفیسر جمشید سگریٹ سلگا رہا تھا، کہنے لگا، بھارت کا یہ خفیہ ایٹمی ری ایکٹر راجستھان میں راج گڑھ سے آگے رام گڑھ کے مغرب میں 2 صحرائی ٹیلوں کے درمیان زمین کے اندر بنایا گیا ہے۔ اس کا ریکارڈ کسی سرکاری فائل میں ایٹمی ری ایکٹر کی حیثیت سے نہیں ہے۔ صحرائی ٹیلوں کے درمیان ایک جانب چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے، جس کے باہر منرل یعنی معدنی ریسرچ سینٹر کا بورڈ لگا ہے۔ ظاہر یہ کیا گیا ہے کہ یہاں معدنیات کے بارے میں تحقیق کا کام ہوتا ہے، لیکن اس عمارت کے نیچے ایٹمی ری ایکٹر لگا ہوا ہے، جس کو راستہ اسی آفس کے اندرونی احاطے کے ایک خفیہ کمرے سے ہو کر جاتا ہے۔ اس ایٹمی ری ایکٹر میں پلوٹونیم کا پلانٹ لگا ہے، جہاں افزودہ یورینیم اور ایٹمی ایندھن تیار کرنے پر بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایٹمی ری ایکٹر زمین کے نیچے کافی وسیع رقبے میں پھیلا ہوا ہے اور انتہائی جدید پیمانے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ تازہ ہوا اور پانی کے نکاس کا پورا انتظام ہے۔ جہاں تک سیکورٹی کا معاملہ ہے تو میری معلومات کے مطابق اس دفتر اور خاص طور پر زیر زمین ایٹمی ری ایکٹر کے اندر وہاں کے کارکنوں کے سوا کسی دوسرے آدمی کا داخلہ ہونا ناممکن ہے۔ وہاں کوئی 150-200 کے قریب سائنسدان اور ٹیکنیشین مختلف شفٹوں میں کام کرتے ہیں، اور وہی پر یہ کام ہو رہا ہے۔ میں اور گل خان خاموشی سے پروفیسر جمشید کی باتیں سن رہے تھے۔ گل خان کچھ پریشان سا ہو گیا تھا، مگر میں نا امید نہیں تھا۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، وہاں کام کرنے والے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ پروفیسر نے بتایا کہ رام گڑھ سے پہلے راج گڑھ کے بڑے قصبے میں ان کے لیے پختہ کمروں اور 3 کمروں والے کوٹھی نما کوارٹر بنے ہیں۔ یہ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ ہم نہاد منزل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی گاڑیاں انہیں لینے آ جاتی ہیں۔ وہاں کسی بڑے سائنسدان کو بھی اپنی کار رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ اونچے عہدے کے لوگ اتنے چھوٹے سے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کیسے ملازم ہو گئے ہیں۔ پروفیسر جمشید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہاں کسی کو اپنی فیملی لانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہفتہ وار چھٹی پر یہ لوگ قریبی یا دوسرے قریبی شہروں میں اپنی اپنی فیملی کو ملنے چلے جاتے ہیں۔ جو سائنسدان بڑے شہروں یعنی دلی، بمبئی، کلکتہ سے یہاں آئے ہیں، وہ مہینے میں ایک بار اپنے گھر میں انہیں صرف 4 دن کی چھٹی ملتی ہے۔ یہاں ہر شے انتہائی رازداری میں رکھی گئی ہے۔ اگر میں سرکاری سائنسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کام نہ کر رہا ہوتا تو اتنی معلومات بھی حاصل کرنا ناممکن تھا۔ پروفیسر جمشید چونکہ ہمارا اپنا آدمی تھا، اس لیے گل خان نے اسے بھی بتا دیا کہ نئی دلی میں اسٹیشن پر میری تصویر پہنچ چکی ہے۔ پروفیسر جمشید کی میں نے یہ عادت نوٹ کی، جب بھی وہ کسی بات پر ذرا سوچنے لگتا تھا تو اینک اتار کر رومال سے اس کے شیشے صاف کرنے لگ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اینک کے شیشے صاف کرنے لگا۔ وہ میری طرف متوجہ تھا، پھر گل خان سے مخاطب ہو کر بولا، اس کا مطلب ہے ہمارے دوست کو آپ فوراً اپنا حلیہ تبدیل کرنا ہوگا۔ گل خان نے کہا، یہ کام ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں یہی کر سکتا ہوں کہ سر کے بال بڑھا لوں، داڑھی مونچھیں رکھ لوں، پلاسٹک سرجری تو میں کرا نہیں سکتا۔ پروفیسر جمشید نے گہری سوچ میں سے ابھرتے ہوئے کہا، تمہاری پلاسٹک سرجری بھی کرائی جا سکتی ہے،
मगर उसके लिए बड़ी राजदारी की ज़रूरत होगी और फिर बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन मद्रास में है, मगर उस पर काफ़ी रकम खर्च होगी। हमारे पास इतने फंड नहीं हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोफेसर। मैं अपना हुलिया इस तरह तब्दील करूंगा कि पुलिस भी मुझे नहीं पहचान सकेगी। मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूं कि राजस्थान के एटमी रिएक्टर में किस तरह दाखिल हुआ जाए, और फिर सिर्फ दाखिल होना ही काफ़ी नहीं, वहां रहकर माहौल का जायज़ा लेना होगा और ऐसी स्कीम तैयार करनी होगी कि एटमी रिएक्टर के प्लांट को धमाके से उड़ाया जा सके। हम तीनों खामोश हो गए। हर कोई अपने अपने तौर पर कुछ न कुछ सोच रहा था। मैंने प्रोफेसर से पूछा, क्या ऐसा कोई जरिया पैदा नहीं हो सकता कि मैं एटमी रिएक्टर में मामूली क्लर्क या मजदूर की शक्ल में भर्ती हो जाऊं? प्रोफेसर ने नफी में सर हिलाया, फिर धीमे लहजे में बोला, वहां किसी मकामी आदमी को मुलाजिम नहीं रखा जाता। जितने क्लर्क या अनसेलेक्टेड वर्कर्स हैं, उन्हें भी रेवाड़ी के शहर या दिल्ली से भर्ती करके वहां भेजा जाता है। उनकी बाकायदा ब्रीफिंग हुई है और उनसे तहरीरी हल्फ लिया गया है कि वो बाहर अपनी बीवी बच्चों से भी एटमी रिएक्टर की सरगर्मियों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी फैमिलियों को भी यही बताया हुआ है कि वो रामगढ़ के मादनियाती रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। राजस्थान की ज़मीन के अंदर मादनी ज़खायर की बाबत रिसर्च वर्क होता है। मैंने यूं ही प्रोफेसर से सवाल कर दिया, इस एटमी रिएक्टर का डायरेक्टर ज़रूर कोई इसराइली होगा। प्रोफेसर ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका डायरेक्टर एक सिख साइंसदान है जिसने अमेरिका और स्वीडन के एटमी प्रोसेसिंग और न्यूक्लियर फिजिक्स की खास तौर पर तालीम हासिल की थी। उसका नाम हजारजन सिंह सोढी है। उसकी फैमिली भी दिल्ली में रहती है। वो अकेला राजगढ़ के रिहायशी क्वार्टर्स में एक निस्बतन बहुत छोटी सी कोठी में अकेला रहता है। महीने में एक बार दिल्ली अपनी फैमिली के पास जाता है। वैसे उसके बारे में मेरे सुराग रसान ने एक दिलचस्प बात ज़रूर बताई है। वो क्या? मैंने पूछा। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोला, सरदार जी पीते पिलाते भी हैं और हफ्ते की रात को रेवाड़ी में किसी औरत के पास जाते हैं। वहां उसने यही बताया हुआ है कि रेवाड़ी में उसका छोटा भाई रहता है। उसके पास वीकेंड गुजारने चला है। मेरी खास कमांडो हिस बेदार हो गई। मैंने प्रोफेसर से पूछा, ये औरत कौन है? प्रोफेसर बोला, मेरे सुराग रसान का कहना है कि ये रेवाड़ी की कोई नीम तवाइफ हिंदू औरत है और इस हिंदू औरत का नाम दुर्गावती है। अचानक मेरे जहन में एक पूरी की पूरी स्कीम आ गई। मैंने प्रोफेसर से पूछा, आप मुझे रेवाड़ी में दुर्गावती के मकान का पता लाकर दे सकते हैं? गुल खान मेरी तरफ तकने लगा। ये तुम किस लिए पूछ रहे हो? मैंने उसे कहा,
ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरा कोई मंसूबा ऐसा नहीं होगा जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत न पड़े। प्रोफेसर ने कहा कि वो अपने आदमी से दरगावती का रेवाड़ी का एड्रेस मालूम करने की कोशिश करेगा। मैंने गुल खान से मुखातिब होकर कहा, गुल खान भाई, मैंने सर के बाल और दाढ़ी मूंछें बढ़ाने का जो फैसला किया है वो अब मेरे काम आएगा। उसने पूछा, वो किस तरह? मैंने कहा, मुझे सिख बनना होगा। मैं सिखों की तरह अपने बालों का जूड़ा बनाकर पगड़ी बांधूंगा और दाढ़ी भी सिखों जैसी बढ़ाऊंगा। मगर इसमें तो 2 महीने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे कमांडो मिशन का तकाजा है कि मैं जब तक पूरा सिख न बन जाऊं एक कदम भी आगे न बढ़ाऊं। उसका एक फायदा यह भी होगा कि दिल्ली पुलिस मुझे पहचान नहीं सकेगी। लेकिन तुम सिख बनकर करोगे क्या? प्रोफेसर ने सवाल किया। मैंने उसे जवाब दिया, पहले मुझे सिख बन जाने दो, उसके बाद बताऊंगा कि मेरे ज़हन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि कहीं 2 महीनों में एटमी रिएक्टर का डायरेक्टर अर्जुन सोढी यहाँ से तब्दील होकर तो नहीं चला जाएगा। प्रोफेसर जमशेद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। एटमी रिएक्टर के प्रोजेक्ट में किसी छोटे से छोटे मुलाजिम को भी तब्दील नहीं किया जा सकता। उनके साथ लॉन्ग टर्म के मुआहदे हुए हैं और डायरेक्टर अर्जुन सिंह सोढी तो प्लूटोनियम बम के धमाके और एटमी रॉकेट और मिसाइल तैयार करने तक वहीं रहेगा। ये बात तयशुदा है। मैंने मुतमईन होकर कहा, बस फिर ठीक है। इन लोगों ने मुझसे बहुत पूछा कि मेरी स्कीम क्या है, मगर मैंने यही कहा कि अपनी स्कीम सिखों वाला हुलिया बनाने और अपना एक नकली सिख नाम रखने के बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे अपने सर के और दाढ़ी के बालों के बड़े होने के इंतज़ार में कम अज़ कम 1.5-2 माह तक वहीं ठहरना था। उसके पेश नज़र ये फैसला किया गया कि मुझे गुल खान के मकान से किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जाए जहां मैं आसानी से आसपास चल फिर सकूं और कोई मुझे आसानी से देख भी ना सके। ऐसी जगह दिल्ली शहर के शुमाल मगरिब में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार के अक़ब में जो पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ से चंद कदमों के फासले पर जंगली बेरियों के दरख्तों के नीचे एक पुरानी कब्र है। उस कब्र की 4 दीवारी के पास एक पुराना मकान था जहाँ गुल खान मुझे ले आया। यहाँ तुम पर किसी को शुबा नहीं पड़ेगा। तुम वैसे दिन के वक्त मज़ार शरीफ की तरफ मत जाना, क्योंकि ज़्यादा लोग उस तरफ होते हैं। एक लड़का तुम्हें सुबह शाम खाना पहुँचा दिया करेगा। मेरा इंतज़ार ना करना, मैं दूसरे तीसरे दिन आ जाया करूँगा। अगर किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो कोशिश करना कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बड़े गेट के पास पब्लिक टेलीफोन बूथ से मुझे इस नंबर पर ख़बर कर देना। गुल खान ने मुझे नंबर लिख दिया। ये एक शिकस्ता दीवारों और
छत वाले अकेले कमरे का मकान था, जिसके आगे छोटा सा सहन और आगे दीवार थी, जिस पर इमली के दरख्त झुके हुए थे। मैंने कमरे को झाड़ पोंछ कर साफ किया। चारपाई और बिस्तर पहले से पहुंचा दिया गया था। सर्दी खूब पड़ रही थी। दिसंबर का महीना खत्म हो रहा था। मैं सुबह सुबह उठकर मकान के पीछे जो खेत थे और जहां मुगलिया ज़माने की एक पुरानी कब्र की चार दीवारी थी, उस तरफ सैर करने निकल जाता। थोड़ी दूर तक सैर करता, वहीं थोड़ी सी वर्जिश करता, क्योंकि कमांडोज अपने आप को फिट रखना ज़रूरी होता है। एक 10-12 साल का लड़का साइकिल पर मेरे लिए 2 वक्त का खाना और थर्मस में चाय लेकर आ जाता। दिन का सारा वक्त मैं मकान के अंदर और मकान के सहन में धूप में बैठकर गुजार देता। छोटा सा गुसलखाना मकान के अहाते के कोने में था। एक दिन छोड़कर गुलखान भी आ जाता और मेरे पास बैठा मुझसे बातें करता रहता। उसने मुझे बताया कि नई दिल्ली पुलिस की जानिब से मेरी तलाश के सिलसिले में अभी तक कोई नुमाया कार्रवाई शुरू नहीं की गई। तुम्हारी तस्वीर नई दिल्ली के थानों में दूसरे मुजरमों के साथ ही लगी हुई है। हम अगर वहां से तस्वीर निकाल भी लाएं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक तस्वीर गुम हो जाने के बाद वहां दूसरी तस्वीर लगा दी जाएगी। हफ्ते की शाम को प्रोफेसर जमशेद भी आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर के और दाढ़ी मूंछों के बाल बढ़ रहे थे। ये एक कुदरती अमल था। गुलखान ने 2-3 बार मुझसे ये बात मालूम करने की कोशिश की कि मैं सिख बनकर क्या करूँगा। मैंने हंसकर उसे टाल दिया। मैं वक्त आने से पहले उन्हें अपने मंसूबे और कमांडो एक्शन के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। मुझे मालूम था कि वो मेरे मंसूबे पर ज़रूर हंसेंगे और उसे दूर अज़कार और नाकाबिले अमल बताएंगे। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी, लेकिन मुझे मर्दों की नफ्सियात, ख़ास तौर पर सिखों की नफ्सियात का गहरा तजर्बा था। शायद इसलिए भी कि मैं सिखों के मुक़द्दस शहर अमृतसर का रहने वाला था और बचपन से सिखों को देखता चला आया था। मुझे अपने मंसूबे की कामयाबी का 100% न सही 60% ज़रूर यकीनी था और मेरे लिए 60% कामयाबी काफ़ी थी। दिन को सर्दी की वजह से मैं थोड़ी बहुत धूप ताप लेता था। रात के वक्त चारपाई पर बैठा अंधेरे में सिगरेट पीता रहता। मुझे रात के वक्त लालटेन या दिया जलाने से गुलखान ने मना कर रखा था। दिसंबर के आखिर और जनवरी के महीने के शुरू बारिशें ज़रूर हुआ करती हैं। ये सर्दियों की बारिशें होती हैं और बड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं। गुलखान ने मुझे एक नीले रंग का पुराना गर्म ओवरकोट दे दिया था कि अगर सर्दी ज़्यादा हो तो मैं उसे पहन लिया करूं। मुझे इस शिकस्ता मकान में आए 10-15 दिन हो गए थे। मेरी दाढ़ी के और सर के बाल काफ़ी बढ़ आए थे, मगर अभी सिखों वाली दाढ़ी नहीं बनी थी और सर के बालों का भी जूड़ा नहीं बन सकता था। एक दिन सुबह को ही आसमान पर बादल छाना शुरू हो गए। सर्द हवाएं चलने लगीं। सर्दी में इजाफा हो गया। मैं कमरे में ही दरवाज़ा बंद करके चारपाई पर कंबल ओढ़े लेटा। गुलखान एक दिन पहले मुझसे मिलकर गया था। उसके आने की उम्मीद नहीं थी। दिल्ली वाला लड़का टफन कैरियर में 2 वक्त का खाना और चाय वाली थर्मस देकर जा चुका था। मैं उसके बाद कुछ देर के लिए सो गया। सोकर उठा तो मुझे बाहर बादलों की गर्ज सुनाई दी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से मैं समझ गया कि बाहर शाम हो गई है। मैंने उठकर खिड़की का एक पट खोला तो अंदर सर्द हवा का झोंका आया। मुझे कमांडो ट्रेनिंग ने बहुत सख्त जान बना दिया हुआ था। आम लोगों की तरह
मुझे सर्दी गर्मी का ज़्यादा एहसास नहीं होता था। यही हाल भूख प्यास का था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकता था। मैं खिड़की में ही खड़ा रहा। बाहर सूरज गरूब हो चुका था और शाम का सरमई धुंधल का बादलों की वजह से ज़्यादा गहरा होने लगा था। मैंने हाथ उल्टाकर खिड़की से बाहर निकाला। अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। बादल में थोड़ी देर के बाद हल्की कभी ज़्यादा गर्ज सुनाई दे जाती थी। मेरा दिल कमरे की फिजा से निकलकर बाहर सैर करने को मचलने लगा। ये जगह एक दो वैसे भी आबाद इलाके में थी और दूसरे सर्दी और बादलों की वजह से दूर दूर तक कोई इंसान परिंदा भी नजर नहीं आता था। मैंने लंबा गर्म ओवरकोट पहना, कमरे को ताला लगाया और मकान के अकब में जो मैदान था उसके साथ साथ दरगाह शरीफ की तरफ चलने लगा। सर्द हवा चल रही थी, खूब सर्दी पड़ने लगी थी, अंधेरा फैलता जा रहा था। मैंने वस्ती हिंद के तारीक जंगलों की रातों के अंधेरे देखे थे। ये तो शहर की शाम का अंधेरा था, इसलिए इसमें मुझे हर शय साफ नजर आ रही थी। जंगलों में रातों को दरबदरी करते रहने की वजह से मेरी आंखों में चीते की आंखों की थोड़ी थोड़ी सिफ्त पैदा हो गई थी और दूसरे आदमी को रात के वक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। वहाँ मैं कुछ न कुछ देख लेता था। चलते चलते मैं उन बेरियों के दरख्तों के पास पहुँच गया जो किसी मुगलिया दौर की किसी पुरानी कब्र की दीवार पर झुके हुए थे। जब मैं कब्र के अहाते की टूटी फूटी दीवार के करीब से गुजरा तो मेरे दिल में कब्र पर फातिहा पढ़ने का ख्याल आ गया। मैंने वहीं से अपना रुख अहाते के दरवाजे की तरफ कर लिया। दरवाज़ा दीवार से ज़्यादा खस्ता हाल था, बस पुरानी ईंटों की चौखट ही रह गई थी। अंदर छोटा सा सैन था। सैन की पुरानी ईंटें भी जगह जगह से उखड़ी हुई थीं। दरमियान में एक घुना दरख्त था। उस दरख्त के नीचे संगे मरमर की एक कब्र बनी हुई थी। कब्र पर कोई दिया नहीं जल रहा था। रात के बढ़ते फैलते अंधेरे में कब्र पर एक अफसरदा खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी सर्द आहें भरती महसूस होती थी। मैंने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी और कब्र के करीब ही एक जगह बैठ गया। सोचने लगा, खुदा जाने ये किस शहजादे या शहजादी या किस गुमनाम हस्ती की कब्र होगी जिसकी ज़िंदगी कैसे हंगामों से भरपूर गुजरी होगी और अब उसकी कब्र पर सिवाय वैरान और हैरत अंगेज़ खामोशी के और कुछ बाकी नहीं। मैं अपनी महदूद सोच के मुताबिक इंसान की बेहिसी पर गौर करने लगा। इसमें कोई शक नहीं। मैंने सोचा कि अगर इंसान अपनी मौत के तसव्वुर, अपनी कब्र के तसव्वुर को आंखों के सामने रखे या कभी कभी उसका तसव्वुर ही कर लिया करे तो बहुत से गुनाहों से बच सकता है। बादलों में बिजली की सी चमक पैदा हुई। 2 सेकंड बाद बादल गरजे और आहिस्ता आहिस्ता गरज दूर होती गई। यहाँ सर्दी थी, ठंडी हवा चल रही थी। कब्र के अहाता पूरी रात के अंधेरे में गुम हो रही थी। जिस तरफ दीवार पर बेरी के दरख्त झुके हुए थे उस तरफ ज्यादा अंधेरा था। मुझे याद है बचपन में हम बेरी के दरख्तों से डरा करते थे और गर्मियों की दोपहरों में इन दरख्तों के पास नहीं जाया करते थे। अगर जाते भी तो एक खौफ दिल में रहता था। हमने सुन रखा था कि बेरी के दरख्तों में चुड़ैलें रहती हैं जो बच्चों को पकड़कर उनके कलेजे निकालकर खा जाती हैं। बड़े हु और ख़ास तौर पर कमांडो बन जाने के बाद इस किस्म के डर खौफ से मेरा जहन पाक हो गया। अब तो ऐसे ऐसे ख़तरनाक जंगलों में ऐसे ऐसे घने दरख्तों पर रातें गुजारी कि अगर आप इन दरख्तों को दिन के वक्त देख लें तो डर जाएं। मैं मुगलिया ऐद की कब्र के पास शुरू रात के अंधेरे में इत्मीनान से बैठा था। मुझे बिल्कुल डर महसूस नहीं हो रहा था। मैं दिल में खुदा को याद कर रहा था। गर्म ओवरकोट में मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी। बादलों में एक बार फिर बिजली चमकी और उसके बाद बादल गरजने लगे।
اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ میں جہاں تھا میرے اوپر درخت کی گھنی شاخیں تھیں۔ مجھے ان شاخوں میں بارش کے قطروں کے گرنے کی خاص آواز سنائی دی۔ بارش شروع ہو گئی تھی۔ پھر میرے سر پر بھی بارش کی ایک بوندیں گری۔ میں نے سوچا کہ اب واپس چلنا چاہیے۔ میں اٹھنے لگا تو مجھے لگا جیسے کسی نے سرد آہ بھری ہو۔ یہ آواز میں نے صاف سنی۔ میں نے آس پاس اندھیرے میں دیکھا، وہاں سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ نے میری داستان میں سنا ہوگا کہ میں روحوں کا بڑا قائل ہوں۔ صرف قائل ہی نہیں ہوں بلکہ اکثر روحیں ملتی رہی ہیں۔ میں یہی سمجھا کہ ضرور یہ اس مرحوم کی روح نے سرد آہ بھری ہے جس کا جسد خاکی اس قبر میں پڑا ہے۔ میں جان بوجھ کر اس خیال سے وہاں بیٹھا رہا کہ اگر وہاں قبر والے کی روح آئی ہوئی تو شاید مجھ سے کوئی بات کرے۔ میں نے روحوں سے اکثر باتیں کی تھیں اور ان کی داستانیں بھی سنی تھیں، لیکن ان روحوں سے جب بھی میں نے سوال کیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے تو اس کے جواب میں ہر روح نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کسی نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ایک روح نے تو مجھے یہ کہہ کر ایسے سوال پوچھنے سے سختی سے منع کیا تھا، یہ خدائی راز ہے، کسی روح کو یہ راز بتانے کی اجازت نہیں۔ اگر آئندہ تم نے ایسا سوال پوچھا تو میرا تمہارے پاس آنا جانا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے کسی روح سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا۔ میں قبر کے پاس خاموش بیٹھا رہا، اس خیال سے کہ شاید کوئی روح مجھ سے ہم کلام ہو۔ کبھی کبھی بجلی چمک جاتی، بادلوں کی گرج سنائی دیتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ بارش باقاعدہ شروع نہیں ہوئی تھی، معمولی سی بوندا باندی ہونے لگی تھی جو درختوں کے نیچے بہت کم محسوس ہوتی تھی۔ میں دیر تک وہاں قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ اب بوندا باندی زیادہ ہونے لگی تھی، اندھیرا بھی گہرا ہو گیا تھا، رات آ گئی تھی۔ میں اٹھ کر اکیلی قبر کے مقبرے سے باہر آ گیا اور اپنے مکان کی طرف چلنے لگا۔ باہر آ کر محسوس ہوا کہ بوندا باندی باقاعدہ بارش کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ جب مکان کے قریب پہنچا تو بارش زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے اوور کوٹ اتار کر اسے جھاڑا اور دیوار میں ٹانگ دیا۔ گل خان نے مجھے اس کی اجازت دے رکھی تھی کہ اگر بہت ضرورت محسوس ہو تو بتی جلا لینا، مگر جلانے سے پہلے کھڑکی دروازہ بند کر لینا اور موم بتی کو کونے میں رکھ کر اس کے آگے کوئی چیز اس طرح رکھ دینا کہ اس کی روشنی کھڑکی اور دروازے کی درزوں میں نہ پڑے۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ کمرے میں تھوڑی سی روشنی ضرور ہونی چاہیے۔ اندھیری راتوں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آتا رہتا ہے، لیکن رات کے وقت کمرے میں اگر لائٹ نہ جل رہی ہو تو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں اپنے تجربے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا تھا، مگر اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ ذرا روشنی ہو اور روشنی میں چارپائی پر بیٹھ کر سگریٹ پیا جائے۔ میری جیب میں 3-4 موم بتیاں کاغذ میں لپٹی ہوئی موجود تھیں۔ میں نے موم بتی جلا کر کونے میں فرش پر لگا دی اور اس کے آگے کھانے کا جو ٹفن کیریئر تھا وہ رکھ دیا۔ ٹفن کیریئر کے سائے کے بہت بڑے بھوت نے پورے کمرے کو اندھیرے سے ڈھانپ دیا۔ اب میں کھڑکی بھی کھول سکتا تھا، لیکن احتیاط کے طور پر میں نے ایسا نہ کیا اور چارپائی کے اوپر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ سلگایا اور بند کھڑکی میں سے آتی بارش کی ہلکی ہلکی آواز سننے لگا۔ یہ بڑی رومانٹک سی آواز تھی۔ اس آواز کو شاعر لوگ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن میں شاعر نہیں تھا۔ میں نے دور دراز گمنام بارانی جنگلوں کی ایسی موسلا دھار بارشیں دیکھی تھیں کہ جن کی آواز ایسی ہوتی تھی جیسے سمندر کی طوفانی لہریں چٹانوں سے ٹکرا رہی ہوں۔ اس آواز سے انسان کا دل دہل جاتا تھا۔ میں بارش کی دھیمی دھیمی آواز بھی سن رہا تھا اور نیم واں آنکھوں سے بند
दरवाजे की तरफ भी देख रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि बंद दरवाजे में से कोई सफेद साया निकलकर अंदर आ गया है। मैंने आंखें पूरी खोल दी, मगर साया कमरे में आते ही जैसे गायब हो गया। मैंने 2-3 बार आंखें झपकाईं, शायद ये मेरा वहम था। सिगरेट मेरी उंगलियों में सुलग रहा था। कमरे में एक अजीब अफसरदा किस्म की यकसानियत सी छाई हुई थी। मैं दीवार से टेक लगाए सिगरेट पीता रहा। सर्दी की वजह से मैंने कंबल अपने घुटनों पर डाल रखा था। जब सिगरेट खत्म होने लगा तो मैंने झुककर फर्श पर रखे एस्ट्रे में उसे बुझा दिया। मैंने एक गहरा सांस लिया और सोने की तैयारी करने लगा। अभी मैं कंबल को ठीक कर रहा था कि बंद दरवाजे के पास वही सफेद सहेला एक बार फिर नजर आया। अब मैं चौकन्ना होकर बैठ गया। मेरे तजर्बे और मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया कि ये साए जैसी चीज का साया है। साया अभी तक दरवाजे के साथ वाली दीवार के पास था। साए की बादल जैसी सफेदी आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और साए की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो, किस मकसद के लिए आए हो? सफेद साया आहिस्ता आहिस्ता फिजा में तैरता हुआ मेरी चारपाई से कोई 5 फुट के फासले पर आकर रुक गया। मैंने गौर से देखा, सफेद हेौले ने अब एक इंसानी जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैंने मजीद गौर से देखा, ये कोई 19-20 साल का नौजवान था, जिसका लिबास सर से पांव तक सफेद था। सर पर मुगल शहजादों वाली पगड़ी थी, पगड़ी भी सफेद थी। साए ने बड़ी साफ मगर दूर से आती हुई आवाज़ में कहा, मैं मुगल शहजादे की रूह हूँ। तुमने फातिह पढ़कर मुझे सवाब पहुँचाया था। आसमानों पर मेरी रूह को सुकून मिला। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई की एक बात बताने तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे ज़रा भी डर खौफ महसूस नहीं हो रहा था। रूहों से अक्सर इस किस्म की मेरी मुलाकातें हो जाया करती थीं। वैसे भी नेक रूहों को देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। नेक रूहें अपने साथ अल्लाह की रहमतें और बरकतें लाती हैं। मैंने मुगल शहजादे से मुखातिब होकर कहा, एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो किसी कब्र को देखे तो फातिहा पढ़कर मरने वाले की रूह को सवाब पहुँचाए। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया था। मुगल शहजादे की रूह ने कहा, मुसलमान अपने फ़राइज़ भूलते जा रहे हैं। मैं तुमसे इसलिए भी खुश हूँ कि इस्लाम का सच्चा जज्बा तुम्हारे अंदर अभी जिंदा है और मजलूम कश्मीरी मुसलमानों की भलाई की खातिर अपने घर से निकलकर दुश्मन मुल्क में आए हो। मैंने कहा, खुदा मुझे इस्लाम, पाकिस्तान और अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों और मुजाहिदों की मदद की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मेरे दोस्त, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी भलाई की बात की है और जिसकी खातिर तुम आसमानों से उतरकर ज़मीन पर आए हो, वो क्या है? मुगल शहजादे की रूह कहने लगी, सुनो, तुम पर अनकरीब एक बहुत बड़ी आफत नाजिल होने वाली है। मैं तुम्हें उससे आगाह करने आया हूं। मैं संभल कर बैठ गया। मैंने पूछा, क्या ये कोई आसमानी आफत है और क्या मैं उससे खबरदार होकर बच सकता हूं? मुगल शहजादे की रूह ने कहा, इंसान अक्सर अपनी पैदा की हुई आफतों और अजाबों में फंसता है। तुम पर भी जो आफत नाजिल होने वाली है वो खुद तुम्हारी पैदा की हुई है। मैं बेचैन सा हो गया। मुझे यकीन था कि नेक रूहें हमेशा सच बोलती हैं, वो झूठ नहीं बोलती। अगर मुगल शहजादे की इस नेक रूह ने कहा है तो ज़रूर मुझ पर कोई आफत नाजिल होने वाली है।
جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آفت کس نوعیت کی ہوگی تو اس نے جواب دیا، یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ قدرت خداوندی کے راز ہیں اور ہم ان رازوں کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ تم چونکہ جہاد کشمیر میں شریک ہو کر کشمیری مسلمانوں پر ظلم کرنے والے کفار کا مقابلہ کر رہے ہو اور تم نے اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رکھی ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہو، اس لیے اللہ کے حکم سے تمہیں آنے والی آفت سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا، اے نیک روح، میں اللہ کی راہ میں اپنے اوپر آنے والی آفتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ آفت میرے کسی گناہ کی سزا ہے تو میں اس کا مقابلہ بھی کروں گا اور خدا کے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگوں گا۔ مغل شہزادے کی روح نے کہا، یہی ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے کہ اگر اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ مجھے قدرت خداوندی کی جانب سے ایک بات کی اجازت ملی ہے کہ میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ جب تم پر آفت نازل ہوگی تو تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ میں ہمتاً متوجہ ہو گیا۔ نیک روح، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا۔ مجھے بتاؤ کہ آفت زدہ ہونے کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا۔ مغل شہزادے کی روح نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے سفید نورانی چہرے نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر دھیمی اور دور سے آنے والی آواز میں کہا، ہندوستان کے شہر نجیب آباد کے باہر پتھر گڑھ کا پرانا قلعہ ہے۔ یہ قلعہ نواب نجیب الدولہ مرحوم نے اپنے دور اقتدار میں بنوایا تھا۔ نواب نجیب الدولہ برصغیر پاک و ہند میں حق و باطل، کفر و اسلام کی جنگ کے وہ بہادر مجاہد تھے جنہوں نے ہندوؤں کے اسلام دشمن ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور اسلام کا پرچم بلند کیے رکھا۔ پتھر گڑھ کا قلعہ اسی مجاہد کی یادگار ہے۔ اس قلعے کے عقب میں نجیب آباد کے جنگل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک خطرناک دشوار گزار جنگل ہے جس کا نام کجلی بن ہے۔ کجلی بن کے جنگل میں ایک ٹیلہ ہے جس کو لال پہاڑی کہتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس ٹیلے کی چوٹی کے ساتھ ساتھ دو سرخ رنگ کی مخروطی چٹانیں کھڑی ہیں۔ جب تم پر آفت نازل ہو تو تم جنگلی بن کے جنگل کی لال پہاڑی پر جانا۔ یہاں پہاڑی کے دامن میں ایک پرانا کنواں ہے۔ اس کنویں کے پاس بانس کے جھنڈ میں ایک قبر ہے۔ اس قبر کا اب نشان ہی باقی رہ گیا۔ اس کے پتھر زمین سے ابھرے ہوئے ہیں۔ تم وہاں باوضو ہو کر فاتح پڑھنا۔ یہ اس مسلمان کی قبر ہے جو کفر و اسلام کے معرکے میں مرہٹا سپاہیوں کے ایک دستے سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئی۔ اگر اس شہید خاتون کی روح تمہیں اپنی ملاقات کا شرف عطا کرنے آ گئی تو اس کے آگے اپنی آفت بیان کرنا۔ وہ تمہیں بتائے گی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم پر پڑی ہوئی آفت کیسے دور ہو سکتی ہے۔ میں نے مغل شہزادے کے بیان کا ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنا تھا اور ساری داستان اپنے ذہن میں یاد کر لی تھی اور اسے کئی بار ذہن میں دہرا بھی لیا تھا۔ مغل شہزادے کی روح نے اپنی بات ختم کرنے کے بعد کہا، میں جا رہا ہوں، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور روح کا سفید سایہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف جا کر غائب ہو گیا۔ مغل شہزادے کی روح کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں کھو گیا۔ سوچنے لگا کہ کس قسم کی
आफत मुझ पर नाजिल होने वाली है। मैंने हाथ फैलाकर खुदा से दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक, गुनाहगार तेरा बंदा हूँ, मेरी गलती कसूर माफ़ कर देना। अगर मुझ पर कोई आफत ज़रूर आने वाली है तो अपने करम से मुझे इतना हौसला अता करना कि मैं उसे बर्दाश्त कर सकूँ। उसके बाद मैंने अपने बटुए में जो छोटी सी नोटबुक थी उसमें वो तमाम तफसील दर्ज कर ली जो मुझे मुग़ल शहज़ादे की रूह ने बताई थी। नजीब आबाद के घने जंगलों में मैं 2 बार गया ज़रूर था और कुजली बंद के बारे में भी सुन रखा था, मगर लाल पहाड़ी कभी नहीं देखी थी। मैंने अभी से अपने आप को आने वाली मुसीबत के लिए तैयार कर लिया और इस ख्याल को दिल से निकाल कर अपने अगले कमांडो मिशन के बारे में सोचने लगा। बाहर बारिश की आवाज़ तेज़ हो गई थी। मैंने उठकर खिड़की खोली। सर्द हवा के साथ बारिश की बारीक फुहार मेरे चेहरे से टकराई। मैंने खिड़की बंद कर दी और कपड़े बदलकर मोमबत्ती जलाई और सो गया। गुल खान अगले रोज शाम को आया तो मैंने उसे मुग़ल शहज़ादे की रूह के बारे में कुछ न बताया। उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसका हमारे कमांडो मिशन से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो काफ़ी रात गए तक मेरे पास बैठा रहा। उसने मुझे बताया कि दिल्ली में पुलिस को मेरी तलाश ज़रूर है, मगर मेरी तलाश में कोई बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू नहीं की गई। सिर्फ खुफिया एजेंसियों को खबरदार कर दिया गया है और खुफिया पुलिस के आदमी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, सिनेमा घरों और बड़े बड़े रेस्तोरानों के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। उनके पास मेरी तस्वीर भी है। मैंने कहा, अब तो मैं यहाँ से सिख बनकर ही निकलूंगा। मेरा हुलिया इतना बदल गया होगा कि पहली नज़र में किसी को मुझ पर शक नहीं पड़ेगा। फिर भी तुम्हें इन इलाकों से दूर रहना होगा जहां खुफिया पुलिस के आदमियों की ड्यूटी लगी हुई है। मैंने गुल खान को बताया कि सिख बनने के बाद दिल्ली में नहीं रहूंगा, मुझे यहां से दूसरे शहर जाना होगा। उसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। कहने लगा, आखिर तुम अपने मंसूबे को इतना छुपा कर क्यों रख रहे हो? हम तुम्हारे अपने आदमी हैं, हमें बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मैंने हंस कर कहा, गुल खान भाई, हर्ज की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अहद कर रखा है कि अपने प्रोजेक्ट का इंकिशाफ सिर्फ उस वक्त करूंगा जब मैं अपने मिशन पर रवाना होऊंगा। गुल खान थर्मस में से प्यालियों में चाय उंडेल रहा था। हंसकर बोला, खैर कोई बात नहीं, वो वक्त भी जल्द आ जाएगा। हम खामोशी से चाय पीने लगे। बारिश दोपहर के बाद थम चुकी थी। गुल खान कहने लगा, तुम यहाँ से बाहर सैर वगैरह के लिए किस वक्त निकलते हो? मैंने उसे बताया कि सिर्फ मुंह अंधेरे करीबी खेतों में जाकर हल्की फुल्की वर्जिश कर लेता हूँ। वो बोला, फिर भी तुम्हें मोहतात रहने की ज़रूरत है। रात के 10 बजे के करीब गुल खान चला गया। उसी तरह उस वीरान मकान में अकेले रहते हुए जब 2 महीने गुजर गए तो मैंने किया कि अब कमांडो मिशन शुरू करने का वक्त आ गया है। शाम को गुल खान आया। मैंने बढ़ी हुई छोटी दाढ़ी और सर के लंबे बालों को सर के ऊपर इकट्ठे करते हुए कहा, गुल भाई, मेरा ख्याल है मैं पूरा सिख बन गया हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? गुल खान ने मुझे गौर से देखा और बोला, मेरे हिसाब से तुम्हें अभी 2 हफ्ते और इंतजार करना चाहिए।
मजीद 2 हफ्ते भी गुजर गए। उस रोज गुलखान अपने साथ छोटा आईना भी लाया था। मैं आईने में इतने दिनों के बाद अपनी शक्ल देखी तो मुझे यूं लगा जैसे कोई नौजवान जोगी मुझे बुला रहा है। मेरी मूंछों के बाल मेरे होंठों के ऊपर गिर रहे थे। दाढ़ी बेतरीके से बढ़ चुकी थी। बाल भी झाड़ियों की तरह बढ़ गए थे। गुलखान बोला, अब तुम्हारा हुलिया बिल्कुल सिखों जैसा हो गया है। जरा सर पर जूड़ा तो बांधो। मैंने सिखों के तरह बालों के ऊपर करके जूड़ा बनाया और उसके गिर्द रुमाल बांधकर आईना देखा तो मैं बिल्कुल सिख लग रहा था। गुलखान से मैंने पूछा, मेरा ख्याल है जब मैंने सिखों वाली पगड़ी बांध ली और दाढ़ी को भी कानों की लौ तक खींच कर बांधा तो पुलिस वाले मुझे नहीं पहचान सकेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? गुलखान ने कहा, ख्याल तो यही है, लेकिन तुम्हें उसके बावजूद बेहद एहतियात से काम लेना पड़ेगा। सीआईडी वालों की नजरें बड़ी तेज होती हैं। मैंने गुलखान से कहा, कल तुम मेरे लिए वो लिबास ले आना जो यहाँ दिल्ली में या उसके आसपास सिख आम पहनते हैं। खास लिबास नहीं होता सिखों का, बस ये लोग आमतौर पर तंग मोरी के पजामे और खुले गिरेबान का कुर्ता, वास्कट या गरम कोट पहनते हैं। कमर में कृपान होती है और लवाजमात होते हैं जो सिख धर्म का हिस्सा हैं, मसलन कड़ा, कृपान, कच्छा केस और कंगा। लेकिन दिल्ली में पढ़े लिखे सिख ज़्यादातर अंग्रेज़ी सूट पहनते हैं। ये मैंने ख़ास तौर पर देखा है कि सिख गर्मियों सर्दियों अंग्रेज़ी सूट बड़े शौक से पहनते हैं। गर्मियों में अगर कोट नहीं पहनते तो कमीज़ पतलून ही पहन लेते हैं। तुम फिक्र न करो, कल मैं ये सारी चीज़ें अपने साथ लेता आऊँगा। मैंने कहा, मुझे कुछ रुपयों की भी ज़रूरत होगी। मेरे पास थोड़े से पैसे बाकी रह गए हैं, क्या तुम इसका बंदोबस्त कर सकोगे? गुलखान बोला, उसकी तुम कभी फिक्र न करना। जैसा कि ये बात तुम्हारे इल्म में होगी, हमने एक खुफिया फंड कायम कर रखा है। दिल्ली के मुसलमान अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करते बल्कि उनकी खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हें कितनी रकम की जरूरत होगी? मैंने पहले से हिसाब लगाया हुआ था। मैंने कहा, अभी सिर्फ 5,000 रुपए की रकम ही काफी होगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, मैं कल ये रकम भी साथ लेता आऊंगा। ये बताओ कि तुम्हें असला वगैरह तो नहीं चाहिए? मैंने कहा, नहीं, मेरे कमांडो मिशन के पहले मरहले में मुझे किसी किस्म के असले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब मैं राजस्थान के ज़ेरे ज़मीन एटमी सेंटर में दाखिल होने में कामयाब हो गया तो मुझे जिस किस्म के असले वगैरह की ज़रूरत होगी वो मैं तुम्हें किसी ज़रिए से बता दूंगा या खुद तुम्हारे पास आकर बता दूंगा। गुल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है अपना मंसूबा तुम अब कल ही बताओगे। मैंने कहा, इंशाअल्लाह।
अगले रोज गुल खान शाम होने से पहले ही आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था जिसमें मेरे लिए कपड़े थे। मैंने उसे खास तौर पर कहा था कि मुझे पढ़े लिखे सिख का रूप धारना है, इसलिए वो मेरे लिए पतलून कोट लाया था। एक बंदी बधाई सर पर पहनने वाली पगड़ी थी जो इन दिनों बाजार में नई नई बिकने लगी थी। इस पगड़ी की खूबी ये थी कि उसे बांधना नहीं पड़ता था, टोपी की तरह पहन ली जाती थी। मैंने रिहर्सल के तौर पर सारे कपड़े पहन लिए, सर पर पगड़ी भी ठीक तरह से जमा ली, गले में कुर्बान, एक कलाई में लोहे का कड़ा पहन लिया, सर के जूंडे में कंघा भी फंसा लिया, नीचे अंडरवेयर यानी कच्छा भी पहन लिया। दाढ़ी के बड़े हुए बालों को मरोड़ियां बनाकर उन्हें ऊपर खींचकर कानों के पास दूसरे बालों में फंसा दिया। मूंछों के बड़े हुए बालों को मैंने उसी तरह रहने दिया, बस हाथों से थोड़ा थोड़ा एक तरफ कर दिया। जब मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो यकीन करें मैं खुद अपने आप को न पहचान सका। गुल खान भी मेरी तरफ गर्दन टेढ़ी करके देख रहा था। बोला, दोस्त, तुम तो सचमुच बिल्कुल सिख लगते हो, पहचाने ही नहीं जाते। लेकिन एक बात। वो क्या? मैंने पूछा। गुल खान ने हंस कर कहा, तुम्हारे जो खतने हो चुके हैं उसका क्या करोगे? मैंने कहा, फिक्र न करो, उसका वक्त नहीं आने दूंगा। मैंने सारा लिबास उतार दिया और अपने कपड़े पहन लिए। गुल खान थर्मस में चाय लाया था। उसने मुझे 5,000 रुपए भी जो नोटों की शक्ल में थे दे दिए थे, जो मैंने बटुए में संभाल कर रख लिए थे। चाय के दौरान उसने मुझसे पूछा कि मेरी कमांडो मिशन कब और कहां से शुरू होगा। मैंने बड़े इत्मीनान के साथ चाय का घूंट पिया और प्याली रखते हुए कहा, गुल खान, पहली बात तो ये है कि इस मिशन में तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। वो हैरत से मेरा मुंह तकने लगा। पूछा, अच्छा? हाँ, मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा। बल्कि तुम्हें अपने साथ किसी और नौजवान को भी ले जाना होगा। तुम दोनों मेरे कमांडो मिशन के पहले मरहले में मेरी मदद करोगे। तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का काम होगा, उसके बाद तुम दिल्ली वापस आ जाओगे। आगे सारा काम मेरा होगा। लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा, ये मैं तुम्हें रेवाड़ी पहुंचने के बाद बताऊंगा। क्या हमें रेवाड़ी जाना होगा? हाँ, मगर अपने साथ तुम जिस नौजवान को लेकर जाओगे वो अपना आदमी होना चाहिए, गुल खान कहने लगा। जाहिर है अपना ही आदमी होगा, दूसरे आदमी का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। मैंने गुल खान को समझा दिया कि उन्हें इस किस्म का हुलिया बनाना होगा जिस किस्म का हुलिया इलाके के औबाश किस्म के नौजवानों का होता है, और उन्हें अपने साथ एक पिस्तौल रखना होगा जो खाली होगा। जैसे जैसे मैं अपने मंसूबे को बताता जाता था, गुल खान की हैरत में इजाफा होता जा रहा था। लेकिन मैं उसे असल प्रोग्राम अभी बताना नहीं चाहता था।
وہ بولا ہمیں کب ریواڑی کے لیے روانہ ہوگا؟ وہ بولا ہمیں کب ریواڑی کے لیے روانہ ہونا ہوگا؟ میں نے کہا پہلے میں اکیلا جاؤں گا، وہاں سے میں تمہیں 2 لفظی خط لکھوں گا کہ یہاں پلاسٹک کا کاروبار کی کافی گنجائش ہے، آپ آ جائیں۔ یہ خط ملتے ہی تم دونوں ریواڑی میرے پاس میرے دیے ہوئے پتے پر پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے اپنا ایک سکھ نام بھی سوچ لیا تھا۔ جب اس بارے میں گل خان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں نے اپنا نام جسونت سنگھ سوٹی رکھا ہے۔ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں اور اب بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گل خان ہمارا دلی میں ماسٹر سپاہی تھا۔ یہ مضبوط جسم والا کمانڈو ٹائپ آدمی تھا، پہلوانی بھی کرتا تھا۔ اس نے بھی جنگل میں مرد مجاہد سے باقاعدہ کمانڈو ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ کمانڈو مشن پر کبھی کبھار ہی کشمیر کے محاذ پر گیا تھا، وہ ہائی ایکسپلوزیو کا ماہر تھا اور کیمسٹری میں اس نے ایم اے کیا ہوا تھا۔ اس کا اصلی نام گل خان نہیں تھا، یہ تو میں نے اس کا فرضی نام رکھا ہوا ہے، اور اس کے مکان کا ایڈریس بھی اسی لیے نہیں لکھا کہ انڈیا کی حکومت اسے پکڑ نہ لے۔ وہ کسی دوسرے ملک کا جاسوس نہیں تھا، وہ انڈیا کا باشندہ تھا، انڈیا کا مسلمان تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے وہ بھارت میں مسلمانوں کے جائز حقوق کے حصول کے لیے اور کشمیر میں مظلوم کشمیری کفار کے ظلم و ستم کے خلاف جو جنگ لڑ رہے تھے ان کی مدد اور حق خود اختیاری کا حامی تھا۔ پاکستان سے اسے اس لیے زبردست محبت تھی کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور پاکستان میں اس کے دینی بھائی رہتے ہیں، اور بھارت کی پاکستان کو نقصان پہنچائے یہ گل خان بھی دوسرے بھارتی مسلمانوں کی طرح ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اسی رات گل خان سے سارے معاملات طے کر لیے اور کہا کہ وہ یہ معلوم کر کے لائے کہ دلی سے ریواڑی جانے والی گاڑی کس وقت چلتی ہے۔ گل خان رات کو جلدی چلا گیا۔ دوسرے روز وہ رات کو آیا، وہ ساری معلومات لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا دلی سے ریواڑی کی جانب دن میں 3-4 گاڑیاں جاتی ہیں، جن میں پیسنجر ٹرینیں بھی ہیں اور ایکسپریس ٹرینیں بھی ہیں۔ ریواڑی دلی سے زیادہ دور نہیں ہے، یہ دلی سے جے پور جانے والی لائن پر ہے۔ دلی سے آگے اس لائن پر گوڑ گاؤں بڑا اسٹیشن آتا ہے، اس کے بعد فرخ نگر آتا ہے، پھر پٹاندی اور اس کے بعد ریواڑی آ جاتا ہے۔ ایکسپریس ٹرین پر یہ 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے۔ میں نے گل خان سے پوچھا کہ صبح صبح کون سی گاڑی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک گاڑی دلی سے جے پور کے لیے تیار ہو کر صبح اذانوں کے وقت چلتی ہے۔ یہ گاڑی میرے لیے بڑی مناسب تھی۔ میں نے گل خان سے پوچھا کہ صبح صبح کون سی گاڑی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ گاڑی دلی سے جے پور کے لیے تیار ہو کر صبح اذانوں کے وقت چلتی ہے۔ یہ گاڑی میرے لیے مناسب تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں منہ اندھیرے دلی کے اسٹیشن سے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے دوسرے دن منہ اندھیرے یہ گاڑی پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ گل خان نے کہا میں آج کی رات تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ وہ رات کو میرے پاس اسی ویران سے کمرے میں رہا۔ رات ہم جلدی سو گئے۔ صبح کو پھٹنے کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ گل خان کو جگایا۔ مجھے کوئی نقلی داڑھی مونچھ تو لگانی نہیں تھی، میری سکھوں والی داڑھی مونچھ پہلے ہی سے تیار تھی۔ میں نے جلدی جلدی غسل کیا اور پتلون قمیض پہن کر سر پر سکھوں والی پگڑی بالوں کا جونڈا بنانے کے بعد اچھی طرح سے جما لی۔ پگڑی نے میرے دونوں کان ڈھانپ دیے تھے۔
गुल खान ने अपनी कलाई की घड़ी दे दी। करेंसी नोट वाला बटुआ मैंने कोट की बजाय पतलून की जेब में रख लिया, जो बटन लगाने से बंद हो जाती थी। वैसे भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो की जेबें काटनी इतनी आसान नहीं होती। गुल खान ने मुझे बताया कि राजस्थान में दिन के वक्त कल गुलाबी मौसम रहता है, मगर रात को ठंड हो जाती है। मुझे चंद्रिका के सिलसिले में तजर्बा था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा गर्म कपड़े की पतलून और कोट नहीं खरीदा। मेरे पास चिंगम टैबलेट की शक्ल में जो 6 टाइम बम थे, वो मैंने पहले सोचा कि गुल खान को दे दूं, फिर कुछ सोचकर उनको अपने पास ही रख लिया। हमने निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के चौक में आकर एक मोटर रिक्शा लिया और स्टेशन पर पहुंच गए। मुंह अंधेरे का वक्त था, सड़क की बत्तियां अभी रोशन थीं। स्टेशन पर पहुंचे तो जयपुर जाने वाली गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर लग चुकी थी। डब्बों में मुसाफिर सवार थे, काफी रश था। हम वहीं प्लेटफार्म पर टी स्टॉल के काउंटर पर खड़े होकर नाश्ता किया। उसके बाद गाड़ी में बैठ गया। गुल खान ने खिड़की के पास आकर आहिस्ता से कहा, मुहतात रहना, मुझे तुम्हारी तरफ से उस वक्त तक फिक्र रहेगी जब तक तुम्हारा खत नहीं मिलता। मैंने आहिस्ता से हाथ निकालकर गुल खान से मुसाफे किया और कहा, गुल भाई, अब मैं जानूं और मेरा काम, तुम जाओ। गाड़ी अभी प्लेटफार्म पर ही खड़ी थी। गुल खान चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद गाड़ी जयपुर की तरफ रवाना हो गई। जिस वक्त मैं रेवाड़ी स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरा, दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। रेवाड़ी का स्टेशन ऐसा ही था जैसे छोटे शहरों के स्टेशन होते हैं। उतरने से पहले मैंने इस बात का जायजा लिया कि वहां पुलिस के सिपाही कितने हैं और कहां पर हैं। वहां 3 सिपाही थे और ये रेलवे पुलिस के सिपाही थे। मैं उनके पास से होकर गुजर गया। किसी ने मेरी तरफ ध्यान न दिया। वहां कई दूसरे सिख मुसाफिर भी ट्रेन से उतरे थे। मैं भी एक सिख नौजवान के हुलिये में था। स्टेशन के बाहर निकलकर रक्शे और तांगे खड़े थे। दूर एक पुरानी सी टैक्सी पर नजर पड़ी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। टैक्सी ड्राइवर मुझे अपनी तरफ आता देखकर बीड़ी फेंककर जल्दी से गाड़ी की तरफ निकल आया। आइए सरदार जी, किधर चलना है, बैठिए, मैं पहुंचाए देता हूं। उसने माथे पर लाल तिलक लगा रखा था। रेवाड़ी में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। स्टेशन के बाहर मुझे सामने 2-3 मंदिरों के अक्स नजर आए थे। मैं टैक्सी में बैठ गया और उसे सिखों वाले पंजाबी लहजे में कहा, चल यार। उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। सरदार जी, किस तरफ चलें? मैंने कहा, बादशाह हो, तुम्हारे शहर की सैर करने आए हैं। किसी होटल में ले चलो जहां कोई माल पानी भी मिल जाए और रात भी कट जाए। टैक्सी ड्राइवर नौजवान लड़का था। मेरी तरफ उसने गर्दन मोड़ कर देखा और आंखें झपकाते हुए मैंने खेज मुस्कुराहट के साथ बोला, बादशाहो, फिक्र ही न करो। टैक्सी रेवाड़ी के छोटे छोटे बाजारों में से गुजरने के बाद एक कुशादा सड़क पर आ गई। उसकी एक जानिब सब्जियों तरकारियों के खेत थे, दूसरी जानिब आबादी थी। दिन के वक्त सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। हिंदू लोग धोतियां बांधे गुजर रहे थे। मोटर गाड़ी एक भी अभी तक नजर नहीं आई थी। टैक्सी आबादी की एक कुशादा सड़क की तरफ घूमी तो मुझे किसी मंदिर में बजती घंटियों की आवाज सुनाई दी।
टैक्सी एक दरमियाने दर्जे की 2 मंजिला इमारत के सामने जाकर रुक गई, जिसकी पेशानी पर हिंदी जबान में रामजी वैष्णु होटल का बोर्ड लगा था। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं हिंदी और गुजराती जबानें पढ़ भी लेता था और गुजराती जबान तो थोड़ी थोड़ी बोल भी लेता था। मुझे अहमदाबाद में रहकर इसका काफ़ी मुहावरा हो गया था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, ओए ये तो विष्णु होटल है, यहाँ क्या माल पानी मिलेगा? यहाँ तो गोश्त की एक बोटी भी नहीं मिलेगी। ड्राइवर ने घूमकर मेरी तरफ पिछली सीट पर देखा और आंख मारकर कहा, सरदार जी बस ये सिर्फ नाम का ही विष्णु होटल है, यहाँ सब कुछ मिलता है, आइए मेरे साथ, उसका मैनेजर मेरा वाकिफ है। मैं ये सारी हरकतें और अपने आप को औबाश किस्म का सिख ज़ाहिर करने का ड्रामा जानबूझकर खेल रहा था। ये मेरे कमांडो मिशन का बड़ा अहम मरला था। वो मुझे होटल के मैनेजर के पास ले गया, जो एक काले रंग का दुबला पतला आदमी था। सर पर गांधी कैप बल्कि कांग्रेसी टोपी पहनी हुई थी। छोटे से काउंटर पर एक तरफ लोहान सलग रहा था, माथे पर विष्णु का तल्क था, पीछे कृष्ण की तस्वीर लटक रही थी। हमें आता देखकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और हाथ बांधकर नमस्कार कहा। ड्राइवर ने भी नमस्कार किया और कहा, गोपाल जी, हमारे सरदार जी दिल्ली से रेवाड़ी की सैर करने आए हैं, कुछ दिन आपके होटल में रहेंगे। गोपाल इस होटल के मैनेजर या मालिक का नाम था, जो मेरे सामने मौजूद था। उसने मेरी तरफ देखा और बड़े इंकिसार के साथ कहा, सरदार जी, आपको हमारे होटल में हर तरह का आराम मिलेगा, आपका सामान कहाँ है? मैंने अपना सिखों वाला पंजाबी में उर्दू बोलने का लहजा बरकरार रखते हुए कहा, ओए, अपना कोई सामान नहीं है, हम इधर मकान बनाने नहीं आया, सैर के वास्ते आया है। यहाँ एक गुरुद्वारा है, उसके भी दर्शन करने हैं। बताओ, कोई अच्छा सा कमरा खाली है? गुसल खाना साथ होना चाहिए। वो हमें होटल की पहली मंजिल में ही पीछे की जानिब वाक़े एक कमरे में ले गया। कमरा बस गनीमत था, मुझे कमरे की अच्छाई बुराई से कोई वास्ता नहीं था, मुझे तो वहां कुछ वक्त गुजारना था। मैंने यूं ही कमरे के नुक्स निकालने शुरू कर दिए। होटल का मैनेजर घबरा सा गया और कहने लगा, सरदार जी, आप जो कहेंगे हम यहाँ लाकर रख देंगे। मैं नया पलंग अभी बिछवाए देता हूँ, भगवान की दिया से आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। 20 रुपए कमरे का 24 घंटे का किराया था। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर मैनेजर के हवाले किया। अभी ये रखो, ज्यादा देर ठहरना हुआ तो और पैसे दे दूंगा। क्यों ओए, अब तू खुश हो ना? मैनेजर नोट लेकर खुश हुआ। काउंटर पर आकर मैंने रजिस्टर में अपना नाम जसवंत सिंह सोडी लिखवाया और दिल्ली का गलत सल्त पता लिखवा दिया। मैंने टैक्सी ड्राइवर को भी 50 रुपए दिए तो उसकी बाछें खिल गईं। कहने लगा, सरदार जी, मुझे हुक्म करें, मैं कब यहाँ आऊँ? आप गुरुद्वारे किस वक्त जाएंगे? मैं सारे शहर की आपको सैर कराऊंगा। मैंने कहा, 1 घंटे बाद आ जाना, अभी मैं कुछ देर आराम करूंगा, अब जाओ। टैक्सी ड्राइवर खुश चला गया। मैं कमरे में आ गया। मेरे पास एक छोटा अटैची केस था जिसमें मेरी 2-3 कमीजें, 2 बुनियानें और कंघी, टूथब्रश, साबुन, तौलिया वगैरह रखा हुआ था।
मैंने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखा, दूसरी तरफ खेत थे। खेतों में दूर एक ट्रैक्टर चल रहा था। 1 घंटे बाद टैक्सी ड्राइवर आ गया। मैंने उसे कमरे में बुला लिया, उसे मजीद 50 रुपए दिए और ओबाश आदमी का किरदार अदा करते हुए सिखों के लहजे में कहा, देखो मुझे कोई घटिया किस्म का तमाशबीन न समझना। दिल्ली कानपुर की ऊंची से ऊंची गाने वालियां मेरी दोस्त हैं। मुझे ये बताओ कि रेवाड़ी में कोई ऊंचे दर्जे की गाने वाली भी है? अगर है तो ठीक है, वरना मैं वापस दिल्ली जाता हूं। ड्राइवर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। सरदार जी, महाराज, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आपके बड़े ऊंचे दर्जे पर खिलाड़ी हैं। आप फिक्र ही ना करें, ऐसा हीरा दिखाऊंगा कि दिल्ली कानपुर में भी ना देखा होगा। कौन है वो? मैंने पूछा। ड्राइवर बोला, महाराज, वैसे तो रेवाड़ी में गाने वालियों का कोई बाजार नहीं है, लेकिन ये औरतें अपने अपने घरों में नाच गाने का धंधा करती हैं। सरकार को मालूम है, मगर सरकार ने इनको धंधा करने का लाइसेंस दे रखा है। मैंने उसे पंजाबी में गाली देकर कहा, ओए, असल बात बयान कर। कौन है ऊंचे दर्जे की गाने बजाने वाली जिसका तू अनजान कर रहा है? टैक्सी ड्राइवर ने जेब से सिगरेट की डबिया निकाली, फिर जल्दी से जेब में रख ली। जानता था कि सिख तंबाकू नहीं पीते और मेरे सामने उसे सिगरेट का पैकेट नहीं निकालना चाहिए था। कहने लगा, सरदार जी, महाराज, एक बड़ी खानदानी औरत है। रात को 2 घंटे धंधा करती है, अभी सिर्फ नाच गाना और कुछ नहीं। खूबसूरत भी बहुत है, अरे गहरे को अपने घर में दाखिल ही नहीं होने देती। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, ओए, उसका नाम पी लो। उसका नाम दुर्गावती है, महाराज। यही मेरा टारगेट था। मैं अपने टारगेट पर पहुंच गया था। मैंने ड्राइवर से पूछा, उसका मकान कहां है? वो बोला, महाराज, मैं ले चलूंगा आपको। मैंने उठते हुए कहा, चलो, अभी चलो। वो मेरी बेताबी देखकर घबरा सा गया। कहने लगा, महाराज, दुर्गावती दिन के वक्त ना तो नाच गाना करती है, ना किसी से मिलती है। रात को आपको ले चलूंगा। आज क्या दिन है? मैंने कहा, आज मंगलवार है। क्यों? तुमने दिन क्यों पूछा? वो कहने लगा, महाराज, इसलिए पूछा है कि दुर्गावती हफ्ते की रात को किसी से नहीं मिलती। क्यों ओए? हफ्ते को उसे कोई बीमारी लग जाती है? हफ्ते को वो क्यों नहीं मिलती? टैक्सी ड्राइवर राजदारी से कहने लगा, महाराज,
हफ्ते की रात को दुर्गावती का यार उससे मिलने आता है। सारी रात रहता है, अगला सारा दिन रहता है और शाम को चला जाता है। ड्राइवर की बातों से मेरी मालूमात की तस्दीक हो रही थी। मैंने अनजान बनकर पूछा, ये उसका यार कौन है ओए? मैं उसको उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ड्राइवर ने कानों को हाथ लगाकर बोला, नहीं नहीं महाराज, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा अफसर है। सुना है राजगढ़ से आता है, वो भी आपकी तरह सरदार जी है। टैक्सी ड्राइवर हंसने लगा। मैंने उसका बाजू पकड़कर मरोड़ा और गाली देकर कहा, ओए हंसता क्यों है? टैक्सी ड्राइवर मुझसे माफिया मांगने लगा। मैंने उसका बाजू छोड़ दिया और लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा, ठीक है यार, मैं हफ्ते की रात को दुर्गावती के पास नहीं जाऊंगा, मगर आज तो हफ्ता है। हम आज रात दरगाबाई के कोठे पर गाना सुनने चलेंगे। जो हुक्म महाराज, मैं कितने बजे आऊं? 9-10 बजे आ जाना। ये टाइम बिल्कुल ठीक रहेगा महाराज। और टैक्सी ड्राइवर मुझे प्रणाम करके चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें बताएं कि नेक्स्ट कौन सी एपिसोड आपको चाहिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।